Hello and welcome to this special broadcast on Sansad TV. I am टीना झा. नमस्कार, संसद टीवी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है. मैं हूं टीना झा. नमस्कार, अहाँ देख रहल छी संसद टीवी. हम छी टीना झा. संसद टीवी के एहि विशेष कार्यक्रम में अहाँ सबके स्वागत करै छी. Of the three languages you just heard me speak, you must have guessed what my mother tongue is. Maithili, the language I learned from my parents and grandparents, and despite staying away from my native place for decades, I still believe that I express myself the best in this language. And I'm sure a lot of you who speak their native languages would agree that mother tongue is the language of the heart, in which you express better, you understand better, you learn better. So as the world marks the International Mother Language Day, the 24th edition of the day this year, it's time to once again highlight the importance of linguistic diversity, something that makes India unique. At the same time, ensure that each one of us do our bit to preserve and promote this rich legacy. So what is being done? What should be done? What role can you and I play in carrying forward our legacy of linguistic diversity? All this and much more on this special broadcast on Sansad TV. I'm delighted to have with us on the program an illustrious panel. So let me begin by introducing them to you. To my right is Padma Shri Chammu Krishna Shastri, Chairman, Bharatiya Bhasha Samiti. He's also associated with the Ministry of Education, Government of India. Shastri ji, swagat hai aapka. Sitting next to Mr. Shastri is Professor Najma Rahmani, Professor and Head, Department of Urdu, University of Delhi. Professor Rahmani, thank you for joining us on the program. Delighted to have you with us. Next to her is Professor Niranjan Kumar, Dean, Planning and Chairman, Committee on Indian Languages, Delhi University. He's also taught earlier at various universities in the United States. Professor Kumar, thank you for your time. And next to him is Dr. Uma Devi. She's Professor of Tamil, Department of Modern Indian Languages and Literary Studies, University of Delhi. Dr. Uma Devi, thank you for your time and welcome to the program. I also have with me joining us on the program a group of young students who will be participating in the program, asking questions to the panelists and all that they can do and contribute in promoting and preserving the linguistic diversity of India. So welcome to the program to you all as well. Shastri ji, let me begin the program today with you. भारत के बारे में कहा जाता है कि कोसी कोसी बदला पानी चार कोस पर वाणी. एक बहुत ही लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो हमारे देश की है वो हमें काफ़ी अलग और काफ़ी स्पेशल बनाती है. तो अगर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के लिहाज से देखें तो ये दिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और कैसे इस देश का जो लक्ष्य है, जिस ऑब्जेक्टिव से इस दिन को मनाया जाता है, उसको हम पूरा कर पा रहे हैं. बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया. तो भारत में भाषाएं अनेक हैं लेकिन भाव एक है. भाषाएं अनेक, भाव एक. कितनी भाषाएं हैं? तो शिक्षा त्रिभाषा सूत्र के अनुसार 141 भाषाएं सिखाए जाते हैं और भारत में मातृभाषा माध्यम में 35 भाषा माध्यम है. कुल मिला के भाषा और उपभाषा बोली, अगर बोलियों को भी अगर जोड़ते हैं, लगभग 1360 भाषाएं हैं. तो इन सभी भाषाओं के बारे में अगर बोलते हैं, हम बोलते हैं डाइवर्सिटी इन यूनिटी. केवल डाइवर्सिटी का बात, हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का केवल बात नहीं करते हैं. डाइवर्सिटी इन यूनिटी. डाइवर्सिटी इज द ब्यूटी, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ. ब्यूटी ऑफ डाइवर्सिटी कैन बी सस्टेन्ड ओनली बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिटी. सो भाषाएं अनेक लेकिन भाव एक. राष्ट्र की एकता के लिए भाषाओं का बहुत बड़ा योगदान है. व्यक्ति का विकास, जैसे मस्तिष्क का विकास भाषा के द्वारा होती है, क्योंकि भाषा के मातृभाषा के द्वारा दुनिया का परिचय होता है. और जैसे जैसे व्यक्ति सारे विषयों को समझता है भाषा के द्वारा, मातृभाषा के द्वारा, इसलिए मातृभाषा के द्वारा व्यक्ति का भी विकास होता है, राष्ट्र का भी विकास होता है. ऐसे इसके कई पहलू हैं. देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ दिस लैंग्वेज इश्यू. मातृभाषा माध्यम से और जो मल्टीलिंग्वलिज्म बोलते हैं, बहुभाषिकता,
India was never a monolingual country like many countries in the world. Right. India had been always a multilingual country. Every society, every place in the country, people know many languages. इस बहुभाषिकता को रक्षा करने के लिए मातृभाषा के साथ साथ और एक दो भारतीय भाषाएं भी हमें समझना चाहिए. तो इस प्रकार बहुभाषिकता, मातृभाषा और सभी भारतीय भाषाएं, इन सभी के बारे में हमें सोचना चाहिए. और इनको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं. एक what's extremely concerning, Professor Rahmani, over the decades is we have moved away from our native places and also native languages for want of better education, for want of better jobs, to cities wherein we are seeing that there is a linguistic homogeneity. So increased globalization, increased urbanization has led to this kind of homogeneity, drifting us away from our mother tongues. How concerning is it for a country as rich, as diverse like India's? दरअसल हमें ये देखना भी ज़रूरी है कि हमारे समाज में सिर्फ लैंग्वेज की डाइवर्सिटी नहीं है, हमारे यहाँ क्लास डाइवर्सिटी भी है. दूसरी बहुत सी कंट्रीज़ में है, हमारे यहाँ भी है. लैंग्वेज के टीचर होने के नाते मुझे ये मालूम है कि मेरे यहाँ जो स्टूडेंट आता है, जो तालिब इल्म आता है, वो एक मार्जिनलाइज सेक्शन से आता है. हमें इस बात पे सोचने की ज़रूरत है, सर यहाँ बैठे हैं, कि हम कैसे अपने मार्जिनलाइज सेक्शन के बच्चों को अपग्रेड करें. जितनी हिंदुस्तानी ज़बानें हैं, हिंदी को छोड़ के, बल्कि हिंदी में भी बड़ी हद तक, उनमें जो बच्चा पढ़ने आ रहा है, उर्दू है, पंजाबी है, तमिल है, संस्कृत है, बंगाली है, वो बच्चा जब ज़बान पढ़ के यहाँ से निकलता है तो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है. हम कैसे उसे एक नौकरी भी दिलवा सके. देखिए, एजुकेशन का मकसद मेरा कुछ और हो सकता है, मेरे बाद वाली जनरेशन का कुछ और है. मेरे लिए ज़बान सीखने का मतलब है मुझे अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है, अपने घर की ज़बान को प्रिजर्व करना है. मैं उसमें लिटरेचर भी इंजॉय करती हूँ. लेकिन मेरे बाद वाली जो ये जनरेशन यहाँ बैठी है, ये मुझसे अक्सर ये सवाल करती है कि हम उर्दू पढ़ के क्या करें, हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. ज़्यादा से ज़्यादा आप जर्नलिज्म का एक एक्स्ट्रा कोर्स करके मीडिया में चले जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी अखबार को ज्वाइन कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप कहीं एंकरिंग में चले जाएंगे. कितनी जगह है हमारे पास कि हम इतने बहुत से लोगों को इन दो फील्ड्स में अकोमोडेट कर लें. इनफैक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है. और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ऑडियंस में आप लोगों से पूछना चाहती हूं, आप लोग सब काफ़ी यंग हैं, कितने लोग अपनी मदर टंग बोल सकते हैं? मुझे लगता है 50% है इस पूरे ग्रुप में जो बोल सकते हैं. क्या वो कंसर्न है जो प्रोफेसर रहमानी कह रही हैं कि किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखते हैं, क्या वो एक बैरियर रहता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए? आप बताइए. इंग्लिश में मेनली मेरे को बैरियर आता है पर्सनली, क्योंकि एक इंग्लिश को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है आजकल कि तुम इंग्लिश नहीं बोल पाते हो, बहुत ज़्यादा फील कराया जाता है. पर्सनली मेरे को जो फील हुआ है, तो इंग्लिश में मेरे को प्रॉब्लम्स आती है, बैरियर्स लगता है कि इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है बाकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग. Let me take that same point to you, Professor Kumar. You've taught in various US universities also. I'm sure आपके एक्सपीरियंस से आप हमें ये ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे कि बाहर की तुलना में हमारे देश में ऐसा क्यों है कि हम अपनी भाषा, अपनी नेटिव ज़ुबान को यूज़ करने में, बात करने में असहज महसूस करते हैं. अपने आप को, अपनी जो हमारी आइडेंटिटी है उसको हम कहीं ना कहीं दबाकर या छुपाकर, ऐसा क्यों है? आपके प्रश्न के पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे भी और मेरे युवा जो साथी हैं यहाँ पर. मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मैकाले 1835 में आया, उसके पहले भारत में कोई ज़बान थी या भाषाएं थी कि नहीं? मैं एक और बात पूछना चाहता हूं. सिंधु घाटी सभ्यता आपको मैं 3,500 साल पहले ले जाना चाहता हूं. अर्बन प्लानिंग का अब तक माना जाता है कि संसार में उतना अच्छा, it is not as urban planning it was, still it is many part of the country and many part of the world, that kind of urban planning is not there. I raise again another question. If you happen to go to Qutub Minar, there is an iron pillar near the Qutub Minar, right?
and the Qutub Minar, the iron pillar below the open sky in the extreme winter, extreme heat, and the rainy season also, that iron pillar is still sustained even after more than 2000 or 2500 years. You don't have any iron pillar of that sort in the world, or not. It is not iron pillar, basically it is some metallic pillar. You don't have any metallic structure in the world of that old. What that was? It was metallurgy. The point I'm trying to make here is, before the British came, or before the English education came, we had a sound knowledge system, and that knowledge system was being propagated, being taught and learnt in our Indian languages. So Indian languages were very powerful languages. What happened after the colonial period? एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई, जो लड़ी जा रही थी स्वाधीनता की लड़ाई, उसमें एक बात और चल रही थी कि कैसे मानसिक रूप से हमें गुलाम बनाया जाए। और मानसिक रूप से गुलाम बनाने में उनकी जो सबसे बड़ी साजिश थी कि इनकी भाषाओं को भी गुलाम और भाषाओं को पराधीन और भाषाओं को हीनता की दृष्टि से दिखाया जाए। और उसी क्रम में हम अपने अंग्रेजी भाषा को अपनाते चले गए और अपनी भारतीय भाषाओं को छोड़ते चले गए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन था, स्वतंत्रता आंदोलन के स्वप्न क्या थे? केवल स्वाधीनता ही नहीं, उसके साथ साथ स्वदेशी और स्वराज के साथ साथ स्वभाषा का भी प्रश्न था। याद कीजिए 1934 के महात्मा गांधी का भाषण। उन्होंने कहा था कि मेरा बस चले, अगर मैं तानाशाह होता तो आज ही भारतीय भाषाओं, विदेशी भाषा में शिक्षा देना बंद कर देता। जो शिक्षक आनाकानी करते उनको मैं बर्खास्त कर देता। मैं पाठ्य पुस्तकों के तैयार होने का इंतजार नहीं करता। These were dreams of all our freedom fighters, from Tagore to Sardar Patel to Tilak to, you take any name. But what happened after the independence? The same colonial mindset, the same English elite mindset, they are ruling this country. They have been ruling this country. मैं उदाहरण देना चाहता हूँ आपको, इजराइल का उदाहरण। जब इजराइल बना, ठीक भारत के ही समय इजराइल भी बना था, और इजराइल जब बना तो उनकी जो अपनी भाषा आज हिब्रू है, हिब्रू जो भाषा है, आपको बताना चाहता हूं मैं कि हिब्रू भाषा जब बनी थी इजराइल, तो एक टूटी फूटी रस्मों रिवाज की भाषा थी, कुछ अपने उनके शास्त्रीय ग्रंथों की भाषा थी, कोई ज्ञान विज्ञान उसमें नहीं था और रोजगार की भाषा नहीं थी। लेकिन उन लोगों ने प्रण किया, संकल्प लिया वहां के शासक वर्ग ने, और देखते देखते 10 से 15 साल में हिब्रू आज दुनिया की उन्नत भाषाओं में से एक है। हिब्रू भाषा पर उनको गर्व होता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात करते हैं, उसमें दुनिया के जो अमेरिका की जिस तरह से बातें की जाती है, उस तरह से इजराइल में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी उतनी ही उन्नत है। हम अपनी भारतीय भाषाओं में यह क्यों नहीं कर पाए? यह हीनता का भाव जो अंग्रेजी राज में शुरू हुआ था, और मैं कहना चाहता हूं, जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स थे, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ऑफ दिस कंट्री, दे हैव फेल्ड दिस कंट्री, दे हैव रूइंड दिस कंट्री, कि भारतीय भाषाओं के बारे में उन्होंने बात करना छोड़ दिया। मैं आपको कोठारी कमीशन में ले जाना चाहता हूं। 1964 में कोठारी कमीशन जब बना था, तो उसकी एक रिकमेंडेशन यह भी थी कि हमारे कम से कम स्कूली शिक्षा भारतीय भाषाओं में की जाए पूरे देश में। लेकिन हमारा जो रूलिंग एलीट है, they did not let it do. But I think now it's begun to change, Professor So Kumar. मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि अब चीजें, इसी का एक उदाहरण दूंगा कि क्यों हीनता का भाव हमें लगता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि आज देखिए सत्ता के गलियारों में जो रूलिंग क्लास है, रूलिंग एलीट है, उसकी मानसिकता बदल रही है। आज किसी जमाने में मंत्रालयों में, और अब जो इंग्लिश चैनल्स है, टीवी चैनल्स को आप देखें, इंग्लिश टीवी चैनल में कभी हिंदी का शब्द, एक बांग्ला का शब्द बोलना भी, या तमिल का शब्द आपको सुनाई नहीं पड़ता होगा। आज इंग्लिश टीवी चैनल की पूरी डिबेट हिंदी में समाप्त हो जाती है। आप कहते हैं कि हमारे रोजगार नहीं है हमारी भाषाओं में। चीन आप चले जाएं, चीन में आपको यहाँ से आपको कनॉट प्लेस जाना हो, और आप अगर मंदारिन नहीं जानते हैं, कितनी भी अंग्रेजी बढ़िया जानते हो, आप पहुंच नहीं पाएंगे। सारा का सारा काम चीन में मंदारिन भाषा में होता है। और मैं बताना चाहता हूं कि चीन के समय आज अमेरिका भी थर्रा रहा है, डरता है अमेरिका चीन से। तो यह अपनी भाषाओं की शक्ति है। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा, इन पांचों देशों को छोड़कर बताइए किस देश में अंग्रेजी में पढ़ाई होती है? That's an important point that you make, that it is part of our identity. We have to strengthen it further.
embolden it and preserve at the same time the languages, the legacy that we've inherited from our forefathers. Professor Uma Devi, let me come to you. And because you're a professor of Tamil, it's widely accepted worldwide now that Tamil is perhaps the first written, oldest surviving language as on date. What are the kind of efforts that we have made? And I'm proud to say that Tamil is one language which is a classical language. Everyone knows a classical language is thousands of years old. We've been able to, not just preserve that, it's being used widely by a huge population in our country, but to ensure that all of the legacy, the written scriptures and the literature is also preserved in a manner that we take pride from the fact that we inherited that from our ancestors. गुड क्रेडिट हमारा तमिल भाषा को आप दिए थे। मैं इधर आई हुई है क्योंकि ना मैं दूसरा इंडियन भाषा पता है मुझको हिंदी, इसलिए मैं इधर ही पार्टिसिपेट करने के लिए आने के लिए मौका मिला। सबसे बड़ी बात है अपने मातृभाषा का अफिनिटी बच्चे के लिए हम डेवलप करना चाहिए। हमारा तमिल भाषा में एक तमिल एंथम है, तमिल भाषा के लिए एक एंथम होता है। पूरा प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम में हम पहले तमिल एंथम गा के देन हम शुरू करेंगे। कोई भी मीटिंग्स है, वही एंथम आप सुनेंगे, उसी की मीनिंग में बता देंगी। वो क्या बोलते हैं ना, ये पूरा इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है, ये औरत की तरह है, हमको रिप्रेजेंट होता है। वो पूरा ब्लू कलर सागर से एक साड़ी पहना हुआ वही इंडिया है, वही इंडिया का पूरा औरत है, ये ब्लू कलर साड़ी पहना हुआ इंडिया है। इंडिया के फेस है वो पर्टिकुलरली फेस, पूरा फेस है वो तमिलनाडु है। उसके ऊपर वाला हमारा ऊपर ही वाला हमारा फेस के ऊपर ही है, उधर ही बिंदी लगा हुआ वही तमिल बिंदी है। बिंदी से खुशबू निकलता है, वैसे तमिल भाषा सारा जहां में फैला जा रहा था। लेकिन मैं बोल रही हूँ हमारा भाषा का हम पकड़ कर रहना, मातृभाषा का सब लोग बोलते थे वो इमोशनल एंड आइडेंटिटी पहुंचाना और भी ज्यादा है। वो बिजनेस ओरिएंटेड थिंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर दी मातृभाषा है। मैं मातृभाषा के द्वारा तो मेरा कल्चर पकड़ सकती हूँ, तब तो मेरा जनरेशन के आगे वाला, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा पोंगल फेस्टिवल है और धोती का फेस्टिवल है, ये कपड़ा हमारा अभी तक पहुंचा करके रखा हुआ वही का वो बिजनेस यंगर जनरेशन को, अगर हमारा मातृभाषा के द्वारा हम हमारा कल्चर को भी पकड़ना पड़ेगा, तब तो यंगर जनरेशन को वही कल्चर से कुछ बेनिफिट और तो वो लोग वही बेनिफिट। अदरवाइज वन पीपल वन कॉर्पोरेट कैन कैप्चर एंड वन आइडियोलॉजी आएगा, फिर तब तो तमिल वाले का वही तमिल वाला मैं बोल रही हूँ अपने अपने मातृभाषा का आइडेंटिटी उधर ही हमको नहीं मिलेगा। एक बच्चे का अपॉर्चुनिटीज पूरा छीने जाएगा, हमारा भाषा को मातृभाषा को छोड़ेंगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर दी तमिल का मैडम भी एक बात ही बोली थी, तो वो क्या बोल रही थी मैडम का आइडिया क्या है, प्रोफेशन चाहिए। तो भाषा सिखाने में, लिटरेचर सिखाने में थोड़ा टेक्निकली अभी एनईपी तो हमको एनकरेज कराया हुआ मल्टी एस्पेक्ट्स में, मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स में, वही से भाषा को एनहांस करना। फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो गेम देखेंगे आप लोग, वीडियो गेम में पूरा कल्चर क्या कल्चर आता है, गन लेकर आता है। ठीक है, वायलेंस तो बच्चे देख रहे हैं, वॉर का चीज हमारा जीन में है, वॉर वाले बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ उसी में हमारा कल्चरल, फॉर एग्जाम्पल कोई लड़ाई वड़ाई में हमको कल्चरली कोई पीछे से क्या क्या आइडियोलॉजी से, फोक परफॉर्मेंस से, फोक हमारा मार्शियल आर्ट फॉर्म्स को उधर ही इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारा लिटरेरी सपोर्ट है। मातृभाषा पढ़ने वाले बच्चे को वही में थोड़ा एनहांस करेंगे, वो बहुत अच्छा सा भाषा भी फ्लोरिश हो जाएगा। थ्रू भाषा वी कैन डेवलप आवर ओन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। भाषा छोड़ेंगे हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ आवर ओन लैंग्वेजेस, रीजनल आइडेंटिटी भी खराब हो जाएगा। So while we adapt to the other languages, let's not forget the roots also. I think that's the entire bottom line of the discussion and the assertion of the International Mother Language Day also. So let me hear it from what the youngsters have to say. Only getting education in your mother tongue is going to help, or the basics in mother language but also learning other languages? What is going to be more beneficial? कौन बोलना चाहेंगे? Yes. मैं इंटरव्यू के लिए जाती हूँ, सो दे रिजेक्टेड मी जस्ट बिकॉज कि मैं हिंदी में अपना इंटरव्यू दे रही हूँ एंड दे वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश, एंड वाई सो?
Okay. Any more questions? Yes. So I'll just come. Let's take 2-3 questions and then we can. Yes. Any more questions? हेलो मैम, हेलो सर, मेरा नाम कार्तिक है। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी इतना सब हमें लैंग्वेज के बारे में बताया गया, तो मैं लैंग्वेज से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या ये नेसेसरी नहीं है कि इंडिया को एक वन लैंग्वेज रिप्रेजेंट करे, जैसे बाकी सभी कंट्रीज़ में एक सिंगल लैंग्वेज हर एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है और वहाँ के लीडर्स आके अपनी ही भाषा में स्पीचेस एंड ऑल देते हैं। तो क्या ये नेसेसरी नहीं है आज के टाइम पे कि इंडिया को एक सिंगल लैंग्वेज रिप्रेजेंट करे ताकि वो भी हर एक भारतीय का गर्व बढ़ाए? Okay. Yes. See, देखिए, भारत की विशेषता ही बहुभाषिकता, और जब जहाँ कहीं भी अगर एक भाषा भाषी प्रदेश था, जैसे अमेरिका में भारतीय छात्र स्थानीय छात्रों से ज़्यादा आगे आए। तब 20 साल पहले उन्होंने एक स्टडी कमीशन किया, क्यों ये इमिग्रेंट्स NRIs ज़्यादा वहाँ आगे आ रहे हैं। तो उसमें फाइंडिंग्स में एक फैक्ट ये था कि अमेरिका के नेटिव जो वहाँ के ये हैं वो एक भाषा भाषी हैं, इंग्लिश भाषी या स्पेनिश भाषी या फ्रेंच भाषी, लेकिन भारत के छात्र बहुभाषी हैं। ये बहुभाषिकता से ये फैकल्टीज, कॉग्निटिव फैकल्टीज बढ़ते हैं, टैलेंट बढ़ता है। So the stronger your mother tongue, the stronger your adaptability. So don't go for a single language. And that is not practical. ये भाषाएं जितने भी हैं, सभी भाषाएं हमारी भाषाएं, लेकिन आवश्यकता क्या है ये बताता हूं मैंने। नंबर 1, जो पढ़ने की दृष्टि से अगर देखते हैं, देखिए वो जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं वो हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन पढ़ना लिखना मुश्किल होता है, आप जानते हैं। तो पढ़ाई में थोड़ा परिवर्तन चाहिए, शिक्षा में। इट इज़ नॉट द ओनली द रिसेप्टिव स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रहेंडिंग स्किल्स केवल नहीं, कम्युनिकेटिंग स्किल्स भी सीखना चाहिए, बोलना और लिखने का। सो टीचिंग पेडागॉजी में भी परिवर्तन चाहिए, पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन चाहिए। अभी जो भाषा शिक्षा होती है वो कविता शिक्षा होती है, काव्य शिक्षा होती है, लिटरेचर पढ़ाते हैं। नॉट ओनली दैट, लैंग्वेज इज ऑल्सो ए स्किल। फॉर अंग्रेजी एजुकेशन में English for doctors, English for nurses, English for management, English for engineering, English for advocates. You can get 30 types of, 40 types of such courses. Why not we have such courses in Hindi, in Kannada, in Telugu? You know, language for specific purpose. So you connect language education with the skills also. आज हिंदी पढ़ के, संस्कृत पढ़ के आप शिक्षक केवल बन सकते हैं, वो नहीं। भाषा को रोजगार के साथ जोड़ने के लिए कई उपाय हम कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वी शुड मेक भारतीय भाषा एस्पिरेशनल। कैसे? अभी जो अंग्रेजी इकोसिस्टम है वो क्यों है? अंग्रेजी माध्यम के कारण। हमारा आग्रह ये भी होना चाहिए, भारतीय भाषा माध्यम, केवल प्राथमिक शिक्षा नहीं, उच्च शिक्षा तक, प्रोफेशनल एजुकेशन आल्सो। एंड केवल वो नहीं पर्याप्त है, अगर इसको एस्पिरेशनल बनाना है, जैसे जॉब मार्केट है, वहाँ जो एग्जीक्यूटिव लेवल में आप जॉब्स जो हैं उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव लेवल में इंटरस्टेट कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन या इंटरस्टेट मैनेजमेंट करना है कॉरपोरेट हाउसेस में, वहाँ अंग्रेजी अनिवार्यता है तो ठीक है। वहाँ जहाँ अंग्रेजी अनिवार्यता है, एसेंशियल इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, वहाँ इंग्लिश मीडियम, वो 10% इस प्रकार का रहेगा, बाकी 90% के लिए अंग्रेजी अनिवार्य नहीं रहेगा। टीना, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये डिबेट है, और जब ये तमाम लोग बोल रहे थे और स्टूडेंट सवाल कर रहे थे, तो मेरे जहन में बहुत से सवाल और बहुत सी चीज़ें आ रही थी। जो आपने कहा कि किताबें तैयार करना, एक ज़माने में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मेडिकल की और इंजीनियरिंग की तालीम उर्दू में दी जाती थी, बाकायदा किताबें तैयार हुई थी, टर्मिनोलॉजी तैयार हुई थी। अभी भी वहाँ के आर्काइव्स में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन वो चल नहीं सका, कुछ बरसों चला, उसके बाद ख़त्म हो गया। कोशिश वही थी कि हम अपनी ज़बानों में प्रोफेशनल तालीम दें, सिर्फ लिटरेचर की तालीम ना दें। वो ख़त्म क्यों हुआ? वो जो सर ने कहा, हम बहुभाषी हैं, मल्टीलिंगुअल लोग हैं,
डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ। हैदराबाद का एक पर्टिकुलर सेक्शन उर्दू में पढ़ सकता है, लेकिन तमिलनाडु तो उस उर्दू में इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकता। एक चीज़ ये डाइवर्सिटी, जिसकी वजह से हम किसी एक ज़बान में शायद किताबें तैयार करने में हमें मुश्किल होगी। वो जो आपका सवाल था कि एक ज़बान, तमिल वाला हिंदी उतनी अच्छी नहीं बोल सकता, हम लोग तमिल नहीं बोल सकते, या हम लोग बंगाली नहीं बोल सकते, हम लोग पंजाबी में समझ सकती हूँ, थोड़ा सा बोल भी सकती हूँ, मैं लिख नहीं सकती हूँ, हालांकि हिंदी बेल्ट की ज़बान है ये। उर्दू फ़ारसी मैं नहीं बोल सकती हूँ, अरबी मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं समझ सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। सवाल ये है कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जब हम ये कह रहे हैं कि हम एक आलमी गांव में रह रहे हैं, दुनिया सिमट गई है, उस सिमटी हुई दुनिया में ज़बान को हमें कई लेवल्स पे देखना पड़ेगा। मैं जो क्लासिफिकेशन ज़बान का करती हूँ, एक आलमी ज़बान है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एक देश की ज़बान है, जो अलग अलग स्टेट्स की, हमारे यहाँ की यूनिकनेस ये है कि अलग अलग ज़बानें हैं, वो नेशनल, इसीलिए शेड्यूल 8 में 22 ज़बानें नेशनल ज़बानें कही गई हैं। हमने किसी एक ज़बान को नेशनल ज़बान नहीं कहा, सरकारी कामकाज की ज़बान को हमने हिंदी कहा, लेकिन हमने ये कहा कि शेड्यूल 8 में लिस्टेड तमाम 22 ज़बानें हमारी नेशनल ज़बानें हैं। तो इसके पीछे जहन में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया लोगों ने, उनके जहन में यही बात रही कि हमारे सारे स्टेट्स को एक इक्वल लिंग्विस्टिक लेवल पे एक इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इनफैक्ट लिंग्विस्टिक दूसरी सेंसस ज़बान भी कह का। रहा है कि करीब करीब 93% लोग जो भारत में जो भी भाषा बोलते हैं वो उन 22 भाषाओं में आती है जो शेड्यूल्ड है बोलियाँ कॉन्स्टिट्यूशन में। उनमें उनका हिस्सा हैं। जी। अच्छा, नेशनल ज़बान हो गई, इंटरनेशनल, नेशनल, उसके बाद हमारा सोशल एक ज़बान होती है, जो एक मिली जुली ज़बान हम बोलते हैं। तमिल से कोई आएगा या बंगाल से आएगा, वो थोड़ी हिंदी थोड़ी तमिल मिक्स करके बोलेगा। मैं यहाँ से बंगाल जाऊँगी, कुछ दिन होंगी, महाराष्ट्र में रही हूँ 3 साल, तो मैंने महाराष्ट्र के कुछ वर्ड्स मराठी के सीखे और वो मैंने बोलना शुरू किया। वो हमारा सोशल इंटरेक्शन की एक ज़बान हो गई, जो कोई पर्टिकुलर ज़बान नहीं होती है। एक चौथी ज़बान हमारी होती है रिलीजियस ज़बान। लाइक मेरी रिलीजियस ज़बान अरबिक हो सकती है, बिकॉज कुरान अरबिक में लिखा गया है। एक रिलीजियस ज़बान संस्कृत हो सकती है, क्योंकि उसमें वेद पुराण संस्कृत में लिखे गए हैं। दूसरी रिलीजियस ज़बानें भी उसी तरह से हो सकती हैं। हम इनमें से सारी, हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम में से बेशतर लोग ये चारों ज़बानें जानते हैं कुछ कुछ लेवल पे। अंग्रेज़ी इसको हम छोड़ नहीं सकते। इतने माइग्रेशंस हो रहे हैं, आप यहाँ से जाएँ, लोग कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, गल्फ़ में जा रहे हैं, तो अभी अरबिक भी सीख रहे हैं। तो किसी एक, हम एडॉप्ट करें ज़बानों को, किसी एक ज़बान को छोड़ के दूसरी ज़बान को एडॉप्ट करने का मामला नहीं है। ये अपनी ज़बान कोर्स स्ट्रेंथन करना है, लेकिन किसी ज़बान को छोड़ के या डिग्रेड करके नहीं करना है। अपनी रूट्स को मजबूत रहने देना अपने है और उस- फिर और भी चीजें मैं सीखनी एक है। छोटी सी 3 लाइनें आपको सुनाऊंगी। औज कहते हैं ऊंचाई को। ये औज बेफराज है, फराज मतलब उसमें ऊंचाई नहीं है। ये औज बेफराज है आवारा बादलो, पोपल ने सर उठा के बड़े फ़ख्र से कहा, पाँव ज़मीं पे गाड़ के सुए फलक चलो। अपनी रूट्स रखिए और उसके साथ एडॉप्ट कीजिए। अपनी रूट्स से एक पेड़ बनाइए जिसकी डिफरेंट ब्रांचेस हों। उसमें वो जो रोज़गार वाला मामला है कि आप अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंट करें। कोई एक ज़बान सीख के आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, हम में से कोई नहीं हो सकता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, आप उर्दू सीखिए, उर्दू पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए, इन डेप्थ नॉलेज है, आप कीजिए, लिखिए, पढ़िए उसमें, लेकिन उसके साथ आपको हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों को उतना ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। मैं ये जानती हूँ कि अच्छी उर्दू, साफ़ उर्दू बोलने वाला अंग्रेज़ी में कबूल किया जाता है, हिंदी में कबूल किया जाता है। यही मामला हिंदी का है। साफ़ हिंदी बोलने वालों को दूसरी जगहों पे कबूल किया जाता है। आप ज़बान अच्छी बोलिए, आपके सोशल इंटरेक्शंस बढ़ेंगे। जिस इंटरव्यू में आप अंग्रेज़ी में इंटरव्यू देंगे ना, 10 मिनट अंग्रेज़ी में बोलेंगे और 2 मिनट आप
अच्छी हिंदी में या अच्छी उर्दू में या अच्छी पंजाबी में बोलेंगे। मुझे लगता है ये जो आपने क्लासिफिकेशन impression बड़ा अच्छा इतने आएगा। बढ़िया ढंग से समझाई हैं कि आगे चल के ये हमारे लिए भी बहुत ही काम की चीज़ है कि एक ज़बान तो आप अपनी मजबूत करिए ही, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसको तो नहीं छोड़ना, पर एक फॉरेन लैंग्वेज जैसे कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप जो कह रहे हैं हिंदी वर्सेस इंग्लिश वाला जो डिबेट है वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा अगर आप इन क्लासिफिकेशंस को फॉलो करेंगे जो प्रोफेसर रहमानी ने बताई। प्रोफेसर कुमार, आप कुछ कह रहे थे। असल कहना मुझे यह है कि अंग्रेजी का विरोध नहीं है यहाँ पर। अंग्रेजी का मैं विरोधी नहीं हूँ, बल्कि मैं कहूँ तो मैं अंग्रेजी का समर्थक भी हूँ। लेकिन ये लेकिन बहुत बड़ा है। लेकिन यह लेकिन है कि भारतीय भाषाओं के मूल्य पर अंग्रेजी को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको उदाहरण दिया, आप इन 5 देशों का मैंने नाम लिया, उसके अलावा दुनिया के सारे उन्नत देशों को देखिए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, चीन, जापान, कोरिया और भी सारे देशों का, ऐसे 20 देशों की आप सूची बनाए संसार के उन्नत देशों की, एडवांस देशों की, तो वहाँ पर आपको अंग्रेजी जानने वाले मुश्किल से 4-5 देश हैं। बाकी सारे देश अंग्रेजी को थोड़ी बहुत जानते हैं, बहुत उच्चतर धरातल पर, जैसा कि आदरणीय चमू कृष्ण शास्त्री जी ने कहा कि कुछ ही लोगों को ज़रूरत पड़ती है जो इंटरनेशनली मोबाइल हैं, जो डिप्लोमेसी में हैं, उनको अंग्रेजी की ज़रूरत है और अंग्रेजी जानना चाहिए। आज के दौर में कम से कम अपने देश में जो 200 सालों से चला आ रहा है, उसमें अंग्रेजी में बहुत सारे ज्ञान विज्ञान की सारी चीज़ें आपके पास है। तो ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए अभी भी अंग्रेजी एक बहुत बड़ा माध्यम है। लेकिन आपने कहा कि इंटरव्यू में हम छट जाते हैं, तो इसीलिए वही तो मैंने कहा कि जो स्वराज के बाद जो स्वदेशी का और स्वभाषा का प्रश्न था, उसको हमारे रूलिंग क्लास ने, शासक वर्ग ने, इलीट ने छोड़ दिया और इसलिए परीक्षा की ज़ुबान, रोजगार की सारी ज़ुबानें अंग्रेज़ी की ज़ुबान थी। अंग्रेज़ी भाषा में सारी चीज़ें होती थी। जो अब सरकार बनी है पिछले 7-8 सालों में आप देखेंगे तो अंग्रेज़ी में इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज थे अब भारतीय भाषाओं में आ रहे हैं, मेडिकल के कोर्सेज थे भारतीय भाषाओं में आ रहे हैं, सारी परीक्षाएं आईआईटी से लेकर मेडिकल की जो परीक्षाएं हैं भारतीय भाषाओं में होनी शुरू हो गई हैं, जो इसके पहले आप सोच नहीं सकते थे। आज से 8-10 साल पहले आप कह रहे थे कि कुछ उस्मानिया में बंद अगर हो गया तो बंद करने के पीछे जो भी कारण रहे हों, क्योंकि इकोसिस्टम वैसा नहीं था। आज इकोसिस्टम है जो भारतीयता के प्रति, भारत बोध के प्रति, भारतीय भाषाओं के प्रति बहुत ही सजग है। और मैंने जैसा पहले भी कहा कि लड़ाई इतनी आसान नहीं है। 200 साल में हमें न केवल आर्थिक रूप से गुलाम बनाया, राजनीतिक रूप से गुलाम बनाया, बल्कि हमें मानसिक रूप से भी गुलाम बना लिया था। और पिछले 700-800 सालों में ऐसी चीज़ें होती जा रही हैं जहाँ पर आपकी भारतीयता को, भारत बोध को, भारतीय भाषाओं को बहुत ही नीचे दृष्टि से देखा जा रहा था। और इसीलिए आप इंटरव्यू में जब जाते हैं तो आप छट जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि स्पेन में तो इंटरव्यू अंग्रेज़ी में नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूँ कि चीन में तो इंटरव्यू अंग्रेज़ी में नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूँ कि स्वीडन से लेकर डेनमार्क, जर्मनी, वहाँ पर अंग्रेज़ी में इंटरव्यू नहीं होता, और बल्कि कोई हिकारत की नहीं, बल्कि नीची निगाह से आपको देखा जाता कि अपने देश की भाषाओं को आप नहीं जानते। भारत में 200 साल में हम सब कुछ भूल चुके हैं। उस हीनता की लड़ाई से लड़ने की ज़रूरत है। और इसी क्रम में चाहे रोजगार हो, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ आपको। आप मीडिया से जुड़ी हैं। मीडिया यूज़र रिसर्च काउंसिल ये हर साल बहुत सारे सर्वे कराता है। एक सर्वे यह भी कराता है इंडियन रीडरशिप सर्वे, जो पिछला सर्वे हुआ था 2019-20 का, कोरोना के बाद 2 साल से नहीं हुआ है। उस सर्वे में मैं बताना चाहता हूं कि प्रिंट मीडिया जो है, प्रिंट में टॉप 30 न्यूज़पेपर्स विच आर सर्कुलेटेड इन दिस कंट्री, उसमें शीर्ष में टॉप 10 में केवल 1 अंग्रेजी का अखबार है, टॉप 30 में सिर्फ 2 अंग्रेजी के अखबार हैं। तो ये समय बदल रहा है। याद कीजिए, मैं 2019-20 का डेटा दे रहा हूं। समय बदल रहा है, परिवर्तन की आहट आपको दिख रही है। समय लगता है, कोई भी जब तूफान आता है, आंधी आती है ना, उसके पहले की ये आहटें हैं। और भारतीय भाषाएं जरूर अभी वैसा नहीं है जैसा कि होना चाहिए। अभी भी आप देखेंगे कि अभी सिविल सर्विसेज में अभी तक क्या था, अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा होती थी। सारे आईएएस आपको एक किसी खास कॉलेज और यूनिवर्सिटी के होते थे। इस बार का जो साक्षात्कार दे रहे हैं सिविल सर्विसेज में, इंटरव्यू में मेजॉरिटी यानी अधिकतम लोगों ने भारतीय भाषाओं में साक्षात्कार देने का विकल्प चुना है। अभी तक रिटर्न में चाहे जिस माध्यम में दे दें, क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं थे पढ़ने के लिए। अभी भी तमिल में कोई पढ़ रहा है, उसको आईआईटी में अगर टेक्नोलॉजी की परीक्षा देना हो तो तमिल में सारी चीज़ें नहीं है, तो उसने आईआईटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी भले
रिटर्न में लिख लिया हो इंग्लिश में, लेकिन इंटरव्यू वो तमिल में देना चाहता है, बंगाली बांग्ला में देना चाहता है, हिंदी वाला हिंदी में देना चाहता है। तो ये परिवर्तन के आहटे हैं, धीरे धीरे बदलेगा, अचानक से नहीं बदलेगा। बिल्कुल, उस परिवर्तन की आहट इनफैक्ट हम देख रहे हैं शास्त्री जी, सरकार ने कई तरह के पहल पिछले कुछ सालों में किए हैं। एनईपी उसका एक उदाहरण है, टेक्निकल एजुकेशन को कैसे रीजनल लैंग्वेजेस में ले जा रहे हैं, तमिल जैसी भाषाओं के रिस्टोरेशन के लिए कमिटी बनाई गई है कि कैसे उसको प्रिजर्व किया जाए। लेकिन ये जो कंपैरिजन प्रोफेसर कुमार ने किया, मैं उस पर आपसे और जानना चाहती हूँ कि जिन देशों के साथ ये कंपैरिजन है वो भाषा के मामले में हमारे जितने डाइवर्स नहीं हैं। तो एक उदाहरण मैं आपको ये देती हूँ कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, मान लीजिए अलग अलग देश के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एक ग्रुप है, एक चाइनीज़ को मिलकर मैंडरिन में बात करेगा। भारत के दो लोग हैं, एक बिहार से है, एक तमिलनाडु से है, दोनों एक दूसरे को देखकर किस भाषा में बात करेंगे? बाहर जाएंगे तो वो ये कहेंगे कि अरे आपकी तो अपनी कोई भाषा नहीं है। लेकिन हम इतने डाइवर्स हैं कि हमारे लिए ये संभव नहीं है कि हम अपने देश की सारी भाषाओं को जान सकें। ये भी हमारा एक सेटबैक होता है, कह सकते हैं कि अरे आप अपने देश की भाषाएं भी नहीं जानते। पर ये जो डाइवर्सिटी है, जो एक चैलेंज भी है हमारे लिए, उसके लिए भी हम कह सकते हैं कि ये कंपैरिजन जायज़ नहीं है। देखिए, ये कुछ गलत धारणाएं, गलत तर्क आज प्रचलित हैं, इसके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। मैं मूलभूत प्रश्न पूछता हूँ, जो अंग्रेजी आने से पहले क्या भारत में इस प्रकार की भाषाई समस्या थी? कहीं नहीं था। कन्याकुमारी से वाराणसी तक, काशी तक, कश्मीर तक यात्रा करते थे, क्या कहीं अनुवाद की व्यवस्था थी? कभी नहीं थी। अनुवाद की व्यवस्था ही नहीं थी। लोग आपस में समझते थे। क्यों समझते थे? सभी भारतीय भाषाओं में समान शब्दावली है वगैरह वगैरह, बहुत से, एक परिवार भी। लेकिन और भाषा के प्रति अपना कोई मन में दीवार नहीं था। हर भाषा के प्रति आत्मीयता थी। जब आत्मीयता है समझ में आता है, जब आत्मीयता नहीं है समझ में नहीं आता है, नंबर वन। इसलिए ये जो विदेश में जाते हैं तो एक बिहार के और तमिलनाडु के कैसे बात करते हैं, एक भाषा नहीं, ये सब क्रिएटेड ये है। ये इसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करना, नंबर वन। एक भारतीय भाषा जो जानता है उसको दूसरी भारतीय भाषा सीखना बहुत बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि 50-60% शब्दावली समान है, वाक्य रचना समान है, ध्वनि व्यवस्था समान है। बहुत आप कभी प्रयास नहीं किया, इसलिए अभी दूसरी भाषा सीखने का प्रयास नहीं किया, उसके लिए वातावरण नहीं किया, इसलिए ये समस्या है। लेकिन आज अभी जैसे प्रोफेसर कुमार जी ने, निरंजन जी ने बताया, तो उसी प्रकार देश में बदल आ रहा है। प्रधानमंत्री अभी पिछले 10 साल में हर मौके पर भारतीय भाषा में, हिंदी भाषा में बोल रहे हैं। उनकी मातृभाषा गुजराती है, लेकिन हिंदी में सबको बोल रहे हैं, नंबर वन। हमारे शिक्षा मंत्री जी हर अवसर पर मातृभाषा माध्यम से शिक्षा हो आग्रह करते हैं। कल ही फाउंडेशन स्टेज के जो जादुई पिटारा पुस्तकों का लोकार्पण करते समय भी उन्होंने कहा, एनसीईआरटी अभी तक 3 भाषाओं में टेक्स्ट बुक पाठ्यक्रम प्रकाशित करते थे। अभी उन्होंने आदेश दिया है 13 भाषाओं में तुरंत करने के लिए मार्च के अंदर, और 1 साल के अंदर 140 भाषाओं में करने के लिए आदेश दिया। तो पाठ्यक्रम सभी भारतीय भाषाओं में हो रहा है। यूजीसी के द्वारा अभी सभी राज्यों को सूचना दी गई है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ को सूचना दी गई है, यूजी और पीजी कोर्सेस में जिन विषयों के पाठ्यपुस्तक भारतीय भाषा में नहीं है, नॉट अवेलेबल, उन सभी का भारतीय भाषा माध्यम से पाठ्यपुस्तक 1 साल के अंदर तैयार करने का। तो स्किल एजुकेशन के वहाँ ये आदेश हुआ है। AICTE प्रोफेशनल एजुकेशन, वहाँ टेक्निकल एजुकेशन भारतीय भाषा माध्यम से हो। बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI द्वारा लीगल एजुकेशन भारतीय भाषा में हो, इसके लिए एक्शन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के अभी तक के 5 करोड़ जो जजमेंट्स है, इन सभी को भारतीय भाषा में अनुवाद करने के लिए आदेश हुआ है। और सभी कोर्ट्स में भारतीय भाषा में व्यवहार हो, इसके लिए वहाँ का जजमेंट स्थानीय भाषा में और सभी 13 भारतीय भाषाओं में अनुवाद। सो इस प्रकार अभी भारतीय भाषाओं का युग शुरू हुआ है, नया शुरुआत हुआ है। इसलिए ये जो बाकी सब जितने भी प्रचार हुआ है, जैसे आपने शुरू में उल्लेख किया, एक भाषा होना चाहिए, एक विदेशी कॉन्सेप्ट है।
भारत के हाँ, वो बिकॉज दोस आर ऑल मोनोलिंगुअल कंट्रीज। और आपने कहा एक ये भी प्रचार हुआ है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी अगर अंग्रेजी में अगर नहीं सीखते हैं, नहीं जानते हैं, फिर आगे जाके प्रॉब्लम होगा, समस्या होगी। क्या जापान में इस प्रकार की समस्या है? जर्मनी में इस प्रकार की समस्या है? चाइना में इस प्रकार की समस्या है? जहां एक भाषा है, मातृभाषा से स्कूल शिक्षा से उच्च शिक्षा तक, प्रोफेशनल एजुकेशन, एवरीथिंग अपनी भाषा में करते हैं, अंग्रेजी में नहीं करते हैं। क्या वहां यह समस्या है? नहीं है। क्यों हम इस प्रकार की समस्या, ये इसलिए जानबूझकर यहां भारतीय भाषाएं आगे न आवे, इंग्लिश को यथावत स्टेटस को रक्षा करने के लिए इस प्रकार के कई गलत धारणाओं को यहां स्थापित किया गया, बार बार कहा जा रहा है। हम भारतीय भाषा में अंग्रेजी शब्दों को लेते हैं। आप जानते हैं अंग्रेजी में भारतीय शब्द कितने लेते हैं? 10-20 शब्द छोड़ के बाकी भारतीय 200 साल से अंग्रेजों ने यहां है, अंग्रेजी भाषा यहां है। कितनी शब्द, हिंदी का 10-20 शब्द लेने के छोड़ के भारतीय अन्य भारतीय भाषा शब्द अंग्रेजी में क्यों नहीं लिया? ये लेन देन देना और स्वीकार करना ये सभी में होना चाहिए ना। मैं उसमें ये एक छोटा ऐसे इस सा प्रकार के कई जी, जी। समस्याएं हैं। एक छोटा सा एडिशन आपकी बात में मैं करूंगी, मतलब ये हमारे लिए भी एक सबक होना चाहिए। हमारे यहाँ दूसरी ज़बानों के अल्फाज, विदेशी ज़बानों के अल्फाज भी, डिक्शनरी हमारे यहाँ हर बार अपडेट नहीं होती है। मैं देखती हूँ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हर साल अपडेट होती है, बिल्कुल। उसमें बहुत से हिंदी के लफ्ज़ हर साल एक के बाद एक जुड़ते आते जा जाते रहे हैं। हैं, है ना। चाय अब उनके यहाँ कॉमन हो गया है, कमरा उनके यहाँ कॉमन हो गया है, और उच्चारण भी बदलते रहते हैं। उच्चारण भी बदलते, वो तो हमारे यहाँ भी बदलते हैं। मैं जो ज़बान यहाँ दिल्ली में बोल रही हूँ उर्दू, वो उर्दू हैदराबाद में नहीं बोली जाती है, वो उर्दू बिहार में नहीं बोली जाती है। इनफैक्ट मीनिंग तक बदल जाते हैं लफ्ज़ के, यहाँ से बिहार तक जाते हुए या हैदराबाद तक जाते हुए या बंगाल तक जाते हुए एक ही उर्दू के मीनिंग भी बदल जाते हैं। शायद हमें, जो सर ने कहा, ऑफ कोर्स नई एजुकेशन पॉलिसी ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक मौका दिया है कि हम अपनी ज़बानों को फिर से समझें और उन्हें रिवाइव करें जो ख़त्म हो रहा है। उसमें डिक्शनरी लेवल पे काम करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ज़बान, कल्चर भी तो हमारा बहुत मिक्स हो गया है ना। और हम अकबर इलाहाबादी 20वीं सदी के पहले हिस्से के एक शायर थे, जब ये अंग्रेज़ी को वाकई इम्पोज़ किया जा रहा था, अंग्रेज़ी कल्चर को इम्पोज़ किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के ज़माने में, तो वो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने एक पूरा एक जंग छेड़ी हुई थी, और जिसमें वो ये कहते थे कि जैसे ही आप इस ज़बान को सीखेंगे, आप वो कल्चर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, वो कल्चर भी आया, लेकिन हमारा कल्चर भी तो गया। आज दिवाली मनाई जाती है ना अमेरिका में, ये कहीं ना कहीं जब Right. भी हम भाषा पर वो चर्चा आदान करते प्रदान हैं, होता है। ये इंग्लिश वर्सेस भारतीय भाषा, ये डिबेट आ जाती है। हाँ। लेकिन इससे एक थोड़ा सा परे सवाल प्रोफेसर कुमार आपसे पूछना चाहूंगी। ये सिर्फ उन्होंने हम पर इम्पोज किया ऐसा नहीं हुआ, अब के बदलते लाइफस्टाइल में भी वो हो रहा है। एक उदाहरण देती हूँ आपको। मैंने मेरे माताजी पिताजी मिथिलांचल के हैं, दोनों की भाषा मैथिली है। मैंने मैथिली सीखी क्योंकि घर पर बोली जाती थी, आम बोलचाल की भाषा थी। अब मान लीजिए, अब लोग शहर जाते हैं, लोगों ने अपने सेम कम्युनिटी में शादी नहीं की, उन्होंने कहीं और शादी कर ली। उनकी जो आगे आने वाली जनरेशन होगी, उनके लिए अब समस्या ये है, और कई सारे आज के जनरेशन के लोगों को भी जानते हैं, आप देखते हैं कि हस्बैंड किसी और स्टेट से हैं, वाइफ किसी और स्टेट से हैं, दोनों की मदर टंग्स अलग हैं, तो बच्चे को अब 2 भाषाएं सिखाना उनके लिए मुश्किल होता है। एजुकेशन सिस्टम आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, तो घर की भी भाषा कहीं ना कहीं आप एक कॉमन पॉइंट पर आ जाते हैं कि छोटे से बच्चे पर कितना वजन डालें भाषा सीखने का, तो आप एक कॉमन लैंग्वेज अडाप्ट कर लेते हैं और आप उसी में बात कर लेते हैं। और शायद यही पिछले कुछ दशकों में हुआ है, जिसकी वजह से मैं अभी आने से पहले एक रिपोर्ट देख रही थी, एक हिंदी अखबार ने छापा है कि केवल पिछले 50 सालों में भारत में कुछ 20% भाषाएं खत्म हो गई हैं। कहीं ना कहीं ये भी जो बदलते लाइफस्टाइल का वो है, या हम जिस तरह से इंटरमिंगल हो रहे हैं, कल्चर्स आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, वो भी एक बड़ी वजह है जिनका इम्पैक्ट भाषाओं पर हो रहा है। देखिए, आपके प्रश्नों के कई लेयर्स हैं। एक तो यही कि जब 2 अलग अलग राज्यों के या अलग अलग भाषाओं के लोगों में आपस में विवाह होता है, और उनके बच्चे फिर कैसे बहुत सारी भाषाओं को बोलें या सीखें। मैं आपको बहुत सारे अध्ययन, प्रामाणिक वैज्ञानिक अध्ययन बताना चाहता हूँ
कि अमेरिका में अभी अध्ययन हुआ कि 2 साल और एक न्यूरोलॉजिस्ट ने किया है, कोई आम भाषा वैज्ञानिक ने नहीं किया। 2 साल से लेकर 8 साल में आप जितनी भाषाएं सीखना हो, आपकी सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। मैं दोहराना चाहता हूं कि 2 से 8 साल के बीच में, यानी बच्चों को भाषाएं तो आसानी से, सहजता से, खेल खेल में सीख लेते हैं। चाहे जितनी भाषाएं सिखा लो, 2-3 भाषाएं तो उनके लिए बहुत ही सरल और सहज होती है। मैंने उदाहरण भी देखा है अपने, कई ऐसे उदाहरण, चूँकि मैं अमेरिका में रहा और कई विश्वविद्यालयों में मैंने पढ़ाया, तो मैंने देखा कि अंग्रेज़ी और स्पेनिश अलग अलग माँ बाप हैं और दोनों भाषाएं बच्ची बहुत अच्छा बोलती थी। अगस्त मुनि का नाम सब लोगों ने सुना है। अगस्त मुनि आज के पीढ़ी शायद ना जानती हो, अगस्त मुनि हमारी पीढ़ी, आपकी पीढ़ी जानती है। कहाँ के रहने वाले थे अगस्त मुनि? काशी के रहने वाले थे, ये माना जाता है, और तमिलनाडु में जाकर वो बसे। और अगस्त मुनि ने जो रचनाएं की, अपने तमिल भाषा में रचनाएं की थी, अगतियार का नाम मैंने लिया था अभी इसके ठीक पहले एक प्रोग्राम में था, मैं बता रहा था। आदि शंकराचार्य केरल के रहने वाले थे और मंडन मिश्र से जाकर शास्त्रार्थ करते हैं, आपके मिथिला में जाकर वहाँ पर उन्हें पराजित करते हैं। भाषा कभी भी ऐसा माध्यम नहीं रही थी कि जो बाधा बने। दूसरी बात, आपने कहा कि हमारे देश में आदिकाल से, जो अभी माननीय शास्त्री जी ने कहा, कि आपस में विवाह संबंध, आवागमन, रानी दुर्गावती का एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। रानी दुर्गावती अकबर के समय में हुई थी और रानी दुर्गावती के जो राज में लोग रह रहे थे, उनके पुरोहित, वो सारे तेलुगु भाषी थे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो बद्रीनाथ में हमारे पुजारी होते हैं, वो बद्रीनाथ का पुजारी मालूम है कौन है? केरल का नंबूदरी ब्राह्मण होता है। तो कभी भी भाषाई ऐसे अवरोध हमारे देश में थे ही नहीं। ये एक कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट है, इसको हमें समझने की जरूरत है कि इसने हमारे दिल दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। जो पिछले 100-150 सालों में आपको पुस्तकें ही पढ़ाई गई, मेडिकल की पढ़ाई सारी हम अंग्रेजी सिर्फ में जानने होती की है। कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजहें हो सकती है जिसकी वजह से लोग अपनी खुद की भाषाओं से दूर हो रहे हैं। तो कई उसके तरह पीछे के वही कारण- कई वही तरह के कारण वही है, बताए टीना जा जी, रहे हैं। कारण है हीनता का अभी बोध। आप पर आती हो जी, प्रोफेसर उमा। Actually, आप अच्छी क्वेश्चन पूछे थे, भाषा मर जाएगा वैसे। That was I married a man who is a Malayali. My son is brought up and born and brought up is from Hindi जगह है, वो हिंदी बोलता है, मलयालम बोलता है, तमिल बोलता है। हम कितना एफर्ट दे रहे हैं, 3 साल तक हम दूसरा भाषा, हिंदी भी सिखाया नहीं है, सिर्फ तमिल पढ़ाया उनको, सिर्फ तमिल में बात कराया। देन आफ्टर 3 years में वो शुरू किया। देन माय हस्बैंड वाज, मेरा भाषा भी आना चाहिए। देन ही आल्सो स्टार्टेड टू टीच हिम। वो मलयालम में बात करने का, उनका नानी वानी से बात करने के बाद he was becoming very strong in मलयालम also। तो ऐसे भाषा अपने अपने का कर्तव्य है, हमारा मातृभाषा को और इंडियन भाषा आप बोल रहे हो, पूरा इंडियन भाषा को हम इट इज आवर ओन ड्यूटी। हम तो हमारा भाषा को पकड़ कर रहना, एंड वही तो हमको बतेगा ज्ञान। दैट इज टुडे आल्सो सर बात करेंगे, हमारा ज्ञान को हम भूल जाएंगे। पूरा आजकल का वही भारतीय भाषा का हायर एजुकेशन आल्सो गोइंग टू टीच इन वो हमारा अपने अपने भाषा से, लेकिन हम ट्रांसलेशन करेंगे, उनकी नॉलेज सिस्टम हमारे अंदर ही घुसेगा। तो हम छोटे से हम क्या करना, हमारा रीजनल नॉलेज को Absolutely. I think डेवलप the करना। focus and the thrust should be on how to ensure that multilingualism actually turns into a more inclusive society. I have time only for 2 questions very quickly. If any of you wants to answer, yes. सर मेरा पूरे पैनल से क्वेश्चन था कि हम अमृतकाल में एंटर कर चुके हैं, हम हमारे देश को 75 साल हो चुके हैं आज़ादी को, स्टिल हमारा यूथ कहीं ना कहीं मोटिवेटेड नहीं है उस रीजनल लैंग्वेज में स्टडी करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। मैं उत्तराखंड हल्द्वानी से बिलोंग करता हूँ। मेरे कैरिकुलम में मुझे कभी कुमाऊनी नहीं पढ़ाई गई, मेरे को सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाया गया। तो मेरा पूरे यूथ की तरफ से ये क्वेश्चन है कि क्यों सरकार अभी तक यूथ को मोटिवेट करने में सक्षम नहीं है। Okay. I'll take that question to Shastri ji, but one more question. Just yes. Somebody was not spoken. This one. Yes. ऊपर माइक दे दीजिए। उसको उत्तर दूं संक्षेप में? I'll just come. एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं फिर, और बहुत कम टाइम है। Very quickly, yes. सर मैं ना निरंजन सर से पूछना चाहूँगा कि सर एक्चुअली जैसे आपने बताया, अभी बात हो रही थी यहाँ पे कि सरकार अभी बहुत कुछ कर रही है अलग अलग लैंग्वेज के में लाने के लिए, पाठ्यक्रम को भी लाने के लिए, लेकिन आज की जो यूथ है वही अपने आप को ना इंग्लिश में ज़्यादा सुपीरियर फील करती है, और जो जिनको अपनी मातृभाषा आती है लेकिन इंग्लिश या नहीं आती, वो अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं और वो अपने आप को छुपाते हैं कि हाँ मतलब मुझे इंग्लिश आती है, और अपनी मातृभाषा को कभी भी आगे नहीं लाते।
I think that was the first Yeah. question that I asked Mr. Kumar. अच्छा, Yes. I will मैं answer. उत्तर देना चाहता इसे शुरू करें। इसमें अगस्त 15 को माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले से भाषण में इसी का उत्तर दिया कि हम हमारी भाषा के संबंध में जो हीन भावना है मन के वो छोड़ना चाहिए, नंबर 1। माने सभी अभी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मेरा आप सबसे मेरा भी निवेदन है, हम प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने के बजाय ज्यादा जी, हम solution। सॉल्यूशंस के बारे में सोचेंगे। उदाहरण के लिए स्टार्टअप्स अभी जो है ना, हम भारतीय भाषा में स्टार्टअप एनकरेज करें। अभी कल ही माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आईआईटी सभी स्टार्टअप इकोसिस्टम को आह्वान किया कि आप भारतीय भाषा में ये नया निर्माण करिए, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी भाषा प्रेमी हम लोग हैं, हम कविताएं रचना करते हैं, करना चाहिए, वो आवश्यक है, लेकिन कॉन्टेम्पररी नॉलेज क्रिएशन इन अवर मदर टंग्स वो करें, नॉलेज क्रिएशन करें, देन लैंग्वेज बिकम्स मोर रिलेवेंट, अट्रैक्टिव। तीसरा, जैसे क्या करना चाहिए इस विचार का प्रचार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भाषा का विकास के लिए, प्रमोशन के लिए विजिबिलिटी चाहिए। आज विजिबिलिटी अंग्रेजी का है। एक छोटा बच्चा दुकान जाके अगर चिप्स परचेस करता है, लेस, वो चिप्स का सारा पैकेज अंग्रेजी में रहता है, वो भारतीय भाषा में कर सकते हैं, रूरल लिस्ट का। ऐसे कई चीजें हैं जो जहां जहां भारतीय भाषा ला सकते हैं, ऐसे विषयों को हम अधिकारियों के ध्यान में ला सकते हैं। और ये जो इकोसिस्टम परिवर्तन करना है तो सरकार के द्वारा पाठ्यक्रम, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा पाठ्यक्रम बदलना चाहिए और इसको रोजगार से जोड़ना चाहिए, भारतीय भाषा को रोजगार से जोड़ना चाहिए। इसके लिए सभी केवल शिक्षा मंत्रालय नहीं, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के द्वारा इकोसिस्टम बदलने के लिए कोशिश करना चाहिए। समाज के हम सब मिलके समाज में मानसिकता बदलने का कोशिश करना चाहिए। ओके, दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके बाद मैं जो बात खत्म करना चाहता हूँ, वो सेम सवाल है जो मैंने आपसे पूछा था। समय की बहुत कमी है। प्रोफेसर रहमानी, एक लास्ट क्वेश्चन। इन्होंने कहा माइंडसेट बदलने की बहुत जरूरत है। सरकारें क्या कर रही हैं, डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं। यंगस्टर्स का भी सवाल जायज़ है कि हम अपनी भाषा में तो पढ़ें, फिर आगे हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का क्या होगा। लेकिन इन सब में जो ये माइंडसेट वाली बात है कि अपनी आइडेंटिटी को अपना प्राइड माने, उसके लिए परिवर्तन कैसे आएगा और उसमें मैं और आप आम लोग क्या भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, प्राइड किस चीज़ का, ज़बान का सीधा ताल्लुक कल्चर से है। अगर आप अपने दूसरे के कल्चर को रिजेक्ट करके नहीं, हाँ बिल्कुल, अपने कल्चर को स्ट्रेंथ करेंगे तो आप अपनी ज़बान को भी स्ट्रेंथ करेंगे। ज़बान और कल्चर एक दूसरे से अलग दो चीज़ें नहीं हैं। इसीलिए जितनी हम अपने एपिक्स पढ़ते हैं वो भी पार्ट ऑफ कल्चर है, उसमें धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, कोई भी ज़बान स्टैटिक नहीं होती। वो किसी एक जगह अगर ठहर जाए तो वो गंदा सड़ा हुआ पानी होती है। इसको दूसरे मुल्कों ने शायद ज़्यादा आसानी से समझ लिया है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम ज़बान की प्योरिटी की बात करते हैं। हम में से कितने लोग जो इस वक्त पैनल में मौजूद हैं, इंक्लूडिंग अवर एंकर और आप लोग, हमने प्योर ज़बान में बात की है क्या? मैं लफ्ज़ प्योर भी कह रही हूँ तो ये भी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, लेकिन ये हमारी ज़बान हो गई है। आई एम इन अ गुड कंडीशन, प्योर अंग्रेजी का लफ्ज हो सकता, मैं एक गुड कंडीशन में हूं, ये मेरी हिंदुस्तानी है। तो प्योरिटी को जब तक हम ये कहेंगे कि प्योर होना चाहिए ज़बान को, तब तक हम प्राइड तो नहीं ला सकते अपने अंदर। हमें जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस के साथ अपनी हिंदुस्तानी को कबूल करना होगा। I think you're यही absolutely हमारा right. pride है। ये the transformative phase that India is currently going through, और जिसकी हमने काफ़ी डिटेल में विस्तृत चर्चा भी की है कि जिस तरह के स्टेप्स सरकार उठा रही है, जिस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा कहीं खो गया था उसको हम वापस ला रहे हैं, सीख रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं। I think it's important, and the larger message here from all our panelists is celebrate your identity, share your identity, and be proud of your identity. And language, of course, is a very, very important part of our identity. So that having been said, I'll have to wind up the program. Time allows me to take up only that much on this special broadcast. I would like to
thank all the panelists for joining us for this very, very interactive and beautiful discussion. There's a lot for all of us to learn, and our audience would agree, especially the classification of the languages, the manner in which we should be, attached to our roots, at the same time learn and take pride in whatever is our legacy. So that having been said, that's it from us, viewers, on this special broadcast. Thank you for your time as well. Keep watching Censored TV. Thank you once again.